Hi guys, what's up? Welcome back to the channel again. So this is gonna be the chapter 6 or part 6 of my Zero to Hero series in UiPath. Yes, this is meant for the people who are new to UiPath या जो बहुत पुराने developers हैं. They just want to refresh their logic, refresh their things in UiPath. So this is meant to be for them. Okay, let's get started guys. So in this part, we're going to be seeing the loops in UiPath, and which are the three loops in UiPath and how we can use them to our logic. Let's get started with a simple process, and we'll be giving this name chapter 6. Okay, oops, 6, and I'll be saying for each loop 10. Let's create the process. तो मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ. तो फॉर ईच लूप आई एम गोना बी टेलिंग यू गाइस द for each loop temp, right? So guys, let's explain this with the help of a scenario. Okay, so loops, अगर हम इसकी definition पढ़ें in the academy, if we read the definition in the academy, so saying loops are an essential part of automation workflows. They allow for repeating a set of operation based on a given condition. This can be useful for iterating through large sets of data, processing information, or executing certain task unit until a specific condition is met. In UiPath Studio, the most important loops are do while and for each. एंड अभी हम यहाँ पे फॉर ईच को देखने वाले हैं. वी विल नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस एग्जाम्पल एंड ऑल. हम ये इसको पढ़ लेंगे, लेकिन हम उसका एग्जाम्पल अपना खुद कस्टम बनाएंगे. दैट इज़ वाई इट्स द बेनिफिट ऑफ वॉचिंग माई वीडियोज़, राइट? बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन अ कस्टम वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर ईच, ताकि आप उसको आगे जाके रीयूजेबल वर्क फ्लोज में बना सकते हैं एंड यू गाइज कैन ऑल्सो यूज दैम वेरी वेरी एफिशिएंटली. Okay, let's read about for each. It performs an activity or a series of activities on each element of an input collection. Means अगर हमारे पास एक series of activities है, तो it's gonna be it's gonna performing any activities on all those elements one by one. This is very useful in data processing. Consider an array of integers. Guys, array, list, dictionaries, everything I'll be telling you afterwards. So अभी just follow with me, ठीक है? For each would enable the robot to check whether each numeric item fulfills a certain condition. इसको मैं explain करूँगा अभी with the help of an example. Don't worry, just follow with me. Or looping through unread emails with a certain line, subject line, and process the information in the body of the email. Okay, no worries. So let's go with this example. For demonstrating the for each loop, let's see that what is the body of the for each loop. And yeah, there are many types of for each loop, guys. For each Excel row, Excel sheet, email, row in data table, file in folder, folder in folder, UI element, parallel for each, everything, right? So this will be a type of, you can say that it is will be containing an expression over here. The input argument will be of type IEnumerable. This I'll be covering again in arrays, list, and dictionary section. What is IEnumerable? And I'll be also creating a link queue session very soon, guys. So link queue starting series I'll be creating with parallelly with this as well, with my Zero to Hero series, right? So it can be done as well for the link queue parts, right? तो अगर आपको कहीं डाउट होता है कि विद यहाँ पे मैं क्या डालूँ, तो जस्ट गो इन एडवांस एडिटर एंड जस्ट सी list of items in argument. Means it is taking something inside of it and the argument type will be IEnumerable, right? तो हम यहाँ पे कोई भी कंटेनर एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसको हम यहाँ पे लेंगे. एक एक आइटम उसके अंदर यहाँ पे जाएगा. मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी, सो डोंट वरी अबाउट इट. दिस इज़ द इटरेटर. द आइटम पार्ट इज़ द इटरेटर. मीन्स यहाँ मैं अगर आइटम लिख दूंगा या यहाँ मैं अगर जय भी लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, एक्स वाई जी एक्स लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, तो this x will be going inside of this list of items, right? And it will be picking all those values. So I'll have to call x. मुझे x को ही यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा. ये बॉडी है लूप की, right? I'll also tell how we can break the loop, but अभी के लिए let's focus on understanding the loop. ठीक है, let's understand this more with the help of an example. ठीक है, let's use an assign activity. assign activity. ठीक है, assign आई टोल्ड यू ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में डालेगा. लेट्स से ARR अंडरस्कोर
numbers. So this is an array of numbers. मैं आपको बताऊंगा everything. I'll let you know what are arrays, lists and dictionary means. Data structures we will covering in another video, set of videos. Don't worry about it. Just अभी के लिए follow with me. ठीक है. So इसको हम लोग इनिशलाइज करने का तरीका क्या होगा? फॉर द कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4 5, ये मैंने सेट लिया है. ये हमेशा एरे ऐसे ही नहीं रहती. एरे कैन बी स्ट्रिंग, एरे कैन बी ऑफ नंबर्स, एरे कैन बी ऑब्जेक्ट्स, एरे कैन बी ऑफ ट्रू फॉल्स बुलियन एनीथिंग. ठीक है, ये मैंने एरे ऑफ नंबर्स बनाई है. सो आई हैव टू चेंज द टाइप टू एरे ऑफ टी. द टी मीन्स द वेरिएबल टाइप. इन 32 ऑब्वियसली वी हैव नंबर्स, सो वी विल बी यूजिंग इन 32. ओके, तो यहाँ पे मेरा जो एरर है दैट गॉट डिमिनिश्ड. आपको समझ में आया ना मैंने यहाँ पे क्या किया? इट्स जस्ट अ कंटेनर. इसके अंदर 1 2 3 4 5 हैं. ठीक है, अभी एरे विल बी डिस्कस्ड इन अनदर पार्ट, तो उसको आगे के लिए छोड़ते हैं. अभी के लिए अभी तो समझो इट्स अ टाइप ऑफ कंटेनर होल्डिंग सम नंबर्स. ठीक है, सिंपल एंड विच आर स्टैटिक. इसको हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, ऐसे आप मान के चलिए. सो अब मुझे मेरा ये टास्क है कि अब ये जो नंबर्स है 1 2 3 4 5, इसके अंदर मुझे एक एक नंबर को प्रिंट करवाना है. हाउ आई कैन प्रिंट ऑल दीज नंबर्स इंडिविजुअली, अलग अलग 1 2 3 4 5. फॉर दैट, या इसके अंदर मुझे कुछ ऑपरेशंस कराना है, कुछ भी ऑपरेशन मुझे कराना है इसके अंदर. तो हाउ आई कैन यूज़ दिस फॉर ईच लूप टू माई बेनिफिट ओवर है. यहाँ पे फॉर ईच लूप रेस्क्यू के लिए आता है. यहाँ अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है परफॉर्म्स एन एक्टिविटी और ए सीरीज ऑफ एक्टिविटी ऑन ईच एलिमेंट ऑफ एन इन्यूमरेशन. सो गाइस, इन्यूमरेशन का मतलब एक कंटेनराइज्ड एक्टिविटीज़ होता है. ठीक है, इसके अंदर मतलब बहुत सारी छोटे छोटे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, एंड इट विल बी कॉल्ड इन सेट इन दिस एरे अंडरस्कोर नंबर. इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी है. ठीक है, नाउ यहाँ पे एज मैंने आपको बताया था इसका वो क्या होगा, दैट जो उसका आई इन्यूमरेबल मीन्स इस टाइप ऑफ कंटेनर जिसके अंदर हम इटरेट कर सकते हैं. इटरेट का मतलब 1 by 1 उस पर हम काम कर सकते हैं. दैट इज़ नोन एज आई इन्यूमरेबल. ठीक है, आपको एरे लिस्ट डिक्शनरी सेक्शन मेरा होगा, उस पर आई लेट यू नो अगेन. आई ऑल्सो नो लेट यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई इन्यूमरेबल एरे एंड अ लिस्ट. तीनों के बीच जो डिफरेंस आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊँगा. यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ. यहाँ पे मैं जे लिख देता हूँ. ठीक है, जस्ट फॉर द इन्फो. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरा ये टास्क है, मुझे एक एक को प्रिंट करवाना है आउटपुट में 1 2 3 4 5. ओके, so I'll be just writing a right line over here. ठीक है, and I'll just say j dot to string, because मैंने आपको बताया था right line always accepts only string part. So this is a type of integer, तो मुझे dot to string से convert करना पड़ा. I have to convert this part to an integer. ठीक है, now one more thing about for each, इसका एक argument type होता है. मीन्स इनसाइड इसके अंदर जो मेरा कंटेनराइज्ड एक्टिविटीज़ हैं वो किस टाइप की हैं. मीन्स ये किस टाइप की एक्टिविटीज़ है. दिस इज ऑफ टाइप इंटीजर 32. यहाँ मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा, प्लीज़ फॉलो माई कर्सर. सो आर्गूमेंट टाइप विल बी इन 32. आई कैन चेंज एनी ऑफ टाइप ऑफ द आर्गूमेंट टाइप. वैसे इट ऑटोमेटिकली टेक्स इट, बट इफ़ इट डजेंट, आपको पता होना चाहिए कहाँ से चेंज करते हैं. आर्गूमेंट टाइप विल बी चेंज फ्रॉम टॉप राइट इन द प्रॉपर्टी सेक्शन. द फर्स्ट पार्ट विल बी आर्गूमेंट टाइप इन 32. क्लिक एंड इट विल बी चेंज्ड. ठीक है, now this j will be going inside of 1 2 3 4 and 5. मीन्स ये j एक बार 1 पे जाएगा. ठीक है, इसको प्रिंट कराएगा. फिर ये j एक बार 2 पे जाएगा, इसको प्रिंट कराएगा. इट विल गो इनसाइड 3, इसको प्रिंट कराएगा 4 and 5. मीन्स एक एक टाइम ये इसके अंदर जा रहा है एंड इसको प्रिंट करवा रहा है. दैट इज कॉल्ड फॉर ईच लूप. प्रिटी सिंपल गाइज, बहुत सिंपल है अगर इसको सिंपल तरह से समझाया जाए तो. इट कैन बी हार्ड एज वेल. ठीक है, लेट्स क्विकली डिबग इट. डिबग एवरीथिंग विल बी टोल्ड एट अ लेटर टाइम. मैं एक सीरीज से चल रहा हूँ, तो असाइन के अंदर गया. ठीक है, ये 1 अंदर गया वापस. ठीक है, प्रिंट करा रहा है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड द लूप विल बी एंडिंग. ठीक है, जब तक ये 5th एलिमेंट तक नहीं पहुँचेगा द लूप वोंट बी एंड. ठीक है, लूप यहाँ पे एंड नहीं होगा. वन मोर थिंग गाइज, फॉर ईच का जो लूप का इंडेक्स होता है, जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है, ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ 0 इटरेशन. तो यहाँ पे इफ आई विल बी गिविंग एन वेरिएबल कॉल्ड इंडेक्स, एंड अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा डॉट टू स्ट्रिंग, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ int32 वेरिएबल. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा. मतलब मैं बॉडी के अंदर ही करा रहा हूँ, तो वो पूरा लूप चलेगा जब ये इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, यहाँ पे 1 सेकेंड, इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी दे विल बी परफॉर्म्ड, एंड उसी के बाद सेकेंड आइटम आएगा.
मतलब अगर मुझे वन के ऊपर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करानी है, इफ आई वांट टू परफॉर्म सम एक्टिविटी ऑन दिस वन वेरिएबल, तो ये सब एक्टिविटीज़ वन के ऊपर परफॉर्म होंगी. दीज ऑल एक्टिविटीज़ विल बी परफॉर्म ओवर दिस वन एलिमेंट, नॉट वन वेरिएबल, सॉरी माय बैड, वन एलिमेंट. ओके, फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर हो गया. इस फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा दैट विल बी ज़ीरो. ज़ीरोथ इंडेक्स पे ये होता है 0 1 2 3 4. ठीक है, ये एरे का इंडेक्स मैं आपको बताऊंगा. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द डिफरेंट पार्ट. एरे लिस्ट एंड डिक्शनरी में हम कवर करेंगे. विल बी कवरिंग दिस पार्ट इन एरे लिस्ट एंड डिक्शनरी सेक्शन, जो कि बहुत जल्द आने वाला है. ठीक है, डू स्टे ट्यून. सो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देते हैं, इन द इनसाइड स्ट्रिंग्स आई कैन से द इंडेक्स ऑफ दिस इटरेशन इज, मैंने आपको बताया था हाउ टू concatenate लाइक दिस, एंड बिकॉज दिस इज दिस नंबर वेरिएबल, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे डॉट टू स्ट्रिंग एंड इट विल बी टेकिंग ऑल दैट पार्ट. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स डीबग दिस अगेन. 1, इंडेक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 0 1. आप देख सकते हैं इंडेक्स बढ़ रहा है, राइट? इंडेक्स इज इंक्रीजिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो अगर हम आउटपुट पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, मेरे राइट लाइन में 1 नंबर था, 1 नंबर प्रिंट हुआ. ठीक है, सेकेंड, द इंडेक्स ऑफ दिस इटरेशन इज 0. मीन्स मैंने आपको बताया था तो फर्स्ट नंबर पे जो होगा यहाँ पे एरे में, उसका इंडेक्स 0 होगा, तो हमने उसका इटरेशन यहाँ पे 0 प्रिंट कर दिया. ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मीन्स फिफ्थ लास्ट एलिमेंट वॉज 4. मीन्स अगर वी हैव 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, तो जो उसका इंडेक्स होगा वो दैट विल बी टोटल ऑफ फोर्थ इंडेक्स होगा उसका, 0 1 2 3 4. ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर गाइज. प्रिटी सिंपल एक्टिविटीज. ठीक है, so this is your for each loop. Okay, and one more thing, वैसे this part will be covered in an Excel automation, but I'll just tell you that क्या होता है. Okay, like for example, I have a, इसको मैं delete कर देता हूँ अभी के लिए. ठीक है, for example, I have a read range activity. I have a workbook or an Excel file you can say, and I have to read something from it, right? So sheet 1, I think the name was correct, right? Challenge 7, yeah, sheet 1 it is. Okay, and I'll just save it to a directive. ये मैंने आपको वेरिएबल टाइप में बताया है that what is it, please review it. Input dt means data table underscore input, so we are following the best practices of UiPath. Okay, so यहाँ पे अपने इसको सेव करा दिया इस डेटा टेबल को. मीन्स दिस ऑल टेबल इज बीइंग सेव्ड इनटू my this variable data, and now I want to what, I want to get all these value, first name, last name, company name, role and company, address, email, phone number. How I can do it? So it's pretty simple guys, that I can use a for each loop. ठीक है, मैं for each loop लगा सकता हूँ. I can use dt input, and यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होता है, बट कई बार नहीं होता. यू गाइस कैन चेंज इट टू डेटा टेबल. ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस. ओके, सो आई जस्ट से row, right? And I just say right line. मैं आपको भी बता रहा हूँ everything. Row and first name dot to string. Okay, this is saying element at our default. Okay, sorry. Whenever we are using this part, yes. Okay, sorry. Whenever we are using a data table, so we have a different activity. I just forgot it. So it will be for each row in the data table. So it is custom made for data table only. So we have to use data table dot underscore input activities, right? So I'll be using current row. It is here. I can use row. I can do anything that I want. I'll be calling now row. I have to call row to get all the data from the data table input. Now इसमें क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी argument type नहीं होगी. argument type इसका by default data table होगा, because this is the activity tailored for data table only. In the body inside the loop inside the body will be right line. ठीक है, हम इससे यहाँ print करा रहे हैं कुछ data, हम यहाँ print करा रहे हैं. So it will be row, and now जैसे मैंने bracket दिया वो कह रहा है column name as string. So the column name will be what? मेरे कॉलम नेम क्या है, फर्स्ट नेम. मैं यहाँ पे आई जस्ट राइट फर्स्ट. एंड गाइज प्लीज़ बी केयरफुल. यहाँ पे क्या होता है कि कई बार
देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन द शीट एंड ऑल, तो प्लीज़ बी वेरी, देखिए यहाँ पे से स्पेस था, क्लासिक एग्जाम्पल में आपको बताया, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल विद दिस, राइट, हाउ वी कैन मिटिगेट इट टू दैट, राइट. मैं ट्रिम इसलिए यूज़ करूँगा बिकॉज टू रिमूव एनी वाइट स्पेसेस, गाइज ऑल्सो रिमेंबर ट्रिम इज यूज टू रिमूव एनी वाइट स्पेसेस फ्रॉम बैक और एंड और फ्रंट और एंड फ्रॉम अ स्ट्रिंग, ठीक है. डॉट टू स्ट्रिंग ट्रिम फंक्शन आपको डॉट टू स्ट्रिंग पे ही काम करता है, ठीक है. सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पार्ट. And whenever we are, this will be covered in Excel automation, whenever we are using reader in workbook, we don't have to open our workbook. So I'll just say retry. John, Jane, Albert. So now all the first name columns are being procured like this, right? So you can see that kitna easy hai yahan pe, with the help of a loop all these parts was procured. And मैं आपको दिखाता हूँ challenge. John to Lara was procured over here in this part. John to Lara was procured in this part. 23 seconds इसको लगे total, क्योंकि मैंने debug mode slow पे चला रखा है, otherwise it is very fast. You can see as well. Let's close it, run, and it is done. So it took 0 seconds literally, and open होते ही वो बंद हो गए. So this was fast UI path is, right, that is why it is a groundbreaking change in the automation industry. ठीक है, तो हमने आपने देखा कि ये अभी एक्सेल ऑटोमेशन का पार्ट है, बट आई एम जस्ट शोइंग दैट हाउ वी कैन इजीली यूज ओनली 2 एक्टिविटीज. मैंने पूरे नेम प्रिंट करा दिए, ठीक है. नहीं तो आई वुड, मेरे को डेटा टेबल इनपुट से मैं पूरा एक एक कॉलम लेता एंड देन उससे मैं रो प्रिंट कराता, तो कितने सारे राइट लाइन हो जाते, 10 राइट लाइन्स हो जाते हैं यहाँ पे. एक राइट लाइन हुआ, एक लूप हुआ, ठीक है. नाउ वन मोर थिंग, let's read the documentation of how do we exit a loop. While loops can be useful, it is important to know how to stop them at the appropriate time. There are multiple ways to exit a loop, and it is crucial to use appropriate method to based on specific requirements of the automation process, right? Let's see what are the methods. We'll only see the for each loop. The for each, because अभी do while हम नहीं कर रहे हैं, the for each loop will exit when it's finished processing every item in the input collection. So the break activity enables you to exit the current loop, for example for each chosen point, and continues the workflow with the activity that follows the loop activity. Additionally, all 3 activities have max iteration property that can be used to set a maximum iteration for the loop in case the loop condition never met or becomes stuck in an infinite loop. Yeah, one more thing guys, यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ, जो हमने पुराना मिरर था उसकी वजह से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं गाइस. लेट्स सी अगर लेगा, just undoing everything, I'm just pressing Ctrl Z. Yeah, yes, good use of undo here. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन है, जैसे मैक्स इटरेशन में हाउ मेनी इटरेशंस यू गाइज वांट टू हैव. सो इसके अंदर भी जो आर्गूमेंट है दैट विल बी ऑफ टाइप इंट 32. जैसे फॉर एग्जांपल आई सेड द इटरेशन वर 4, राइट, 4 इटरेशंस थे. दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार. द इटरेशंस वर 4. ओके, सो आई मैं यहाँ पे बोलूँगा 3 तक चलो, खाली मुझे 3 तक ही चाहिए. आई डोंट वांट एनी मोर इटरेशन देन दिस. Let's quickly run it, and you can see that 0 1 2 मतलब 3 iterations तक यहाँ पे चलेगा. ये count है, 0 1 2 is 3 iteration, 1 2 3, there are only 3 iterations over here, ठीक है. अगर मैं बोलूँगा कि मुझे पूरे 5 iterations तक चाहिए, I'll run the project, so मेरे को पूरा का पूरा आउटपुट मिलेगा, ठीक है. अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे दैट 4 इटरेशंस तक मुझे चाहिए खाली, सो मुझे उस हिसाब से 0 मतलब दिस इटरेशन इज़ 1 इटरेशन, 2 इटरेशन, 3 इटरेशन, 4 इटरेशन, ठीक है. इटरेशन का नंबर 1 है, बट इटरेशन की जो वैल्यू है वो है 0. 0 1 2 3 एंड 1 2 3 4. आई होप दैट दिस इज़ वेरी क्लियर गाइज, ठीक है. मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो मेरी एरे है इसका जो स्टार्टिंग का इंडेक्स इट इज़ 0 1 2 3 4, लेकिन जो इटरेशन है वो फर्स्ट इटरेशन है, सेकंड इटरेशन है, थर्ड इटरेशन है, फोर्थ इटरेशन है, फिफ्थ इटरेशन है,
आई होप दैट दिस इज़ वेरी क्लियर गाइस. इटरेशन मीन कितने बार वो उस एलिमेंट पे जाएगा, वापस लूप में अंदर आएगा, उसको हम एक इटरेशन कहते हैं. मीन्स j इज गोइंग इन साइड ऑफ दिस वन, पिकिंग सम वैल्यू, एंड उसके जो भी ऑपरेशन होना है, ये जब तक मेरी ये बॉडी, ये देख रहे हो गाइस, ये वाली बॉडी है जो मैंने अभी इसको ड्रॉप डाउन से खींचा है यहाँ पे. मीन जब तक ये क्या है, जब तक मेरा फर्स्ट एलिमेंट है पिक हुआ, फर्स्ट एलिमेंट के अंदर पूरी एक्टिविटी होंगी. यहाँ पे इसकी तरह कुछ भी डाल सकते हो, लिटरली एनी एक्टिविटी कैन बी पुश्ड ओवर हेयर. ठीक है, आई हैव सीन मेन लिटरली प्रोजेक्ट्स पुशिंग ओवर इन द फॉर ईच बॉडी. ठीक है, वी कैन यूज एन इन्वोक अगेन और नॉट. तो इंडेक्स का मैंने आपको बता दिया, मैक्स इटरेशंस का आपको मैंने बता दिया. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ बूलियन एक्टिविटी है. द एंटायर फॉर ईच लूप विल एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज ट्रू. Okay, let's understand this as well. For example, array numbers, मेरे पास array of numbers है. ठीक है, अगर मैं बोलूँगा array numbers contains, ठीक है, अगर मैं बोलूँगा contains, I can say 1. अगर मेरा array numbers के अंदर 1 होगा, ये तब तक, ये तभी चलेगा. अगर 1 नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा. ठीक है, एक और हम उसको रन करके देखते हैं. तो ये चला. ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स मैक्स इटरेशन, जितने इटरेशंस हैं उसको हम रखते हैं यहाँ पे. लेट्स रन इट. ठीक है, तो ये क्या है, 0 1 2, मतलब इसकी ये पूरा चला है मेरा कंडीशन. अब जैसी ही क्या है, अब आपको दोबारा तो बताता हूँ. एंटायर फॉर ईच विल एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज ट्रू. जैसे ही ये अनट्रू होगी, मीन्स यहाँ पे मैंने मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को. यहाँ पे मैंने डाल दिया कंटेन्स 0 फॉर एग्जाम्पल. सो दिस लूप डिडंट इवन स्टार्टेड. ये लूप स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसे हम देख सकते हैं. आई जस्ट पुट इट इन डीबग मोड. कंडीशन नहीं हुई, वो अंदर ही नहीं गया है, तो यहाँ कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ है मेरे आउटपुट में. ठीक है, आई होप दैट मैंने आपको फॉर ईच की तीनों प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं. सॉरी, चारों प्रॉपर्टीज, आर्गुमेंट टाइप, कंडीशन, मैक्स इटरेशंस एंड इंडेक्स. देन व्हाट आर ऑल दीज एंड हाउ वी कैन यूज देम टू alter our workflows in the for each loop, right? So I hope that this is very clear guys. क्या है फॉर ईच लूप, कैसे हम इटरेट कर सकते हैं, ये बहुत इजी मैंने डेमो बताया है आपको, तो आपके दिमाग के अंदर आई, यू गेट इट इनसाइड योर ब्रेन करेक्टली. ओके, सो दिस वाज इट फॉर द फॉर ईच डेमो. व्हाट इज फॉर ईच इन UiPath? So we have completed the for each loop. Next will be while, and then we'll be doing do while. ठीक है, so this is a small video on फॉर ईच लूप. द रेस्ट आप इसके जो डिफरेंसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज व्हेन विल बी यूजिंग वाइल एज वेल. ठीक है, देन विल बी डूइंग सम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज ऑफ फॉर ईच लूप्स. राइट, हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे फॉर ईच लूप, यहाँ पे आपके सामने ही एक्सरसाइजेज होंगी. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. सो this was it guys for this small informative video on loops. If you like the content, don't forget to like, share and subscribe my channel. Please support me guys. I just want that you guys should be having all the knowledge in UiPath from my side. Okay, thank you so much for being here, and as always, keep learning.